Good morning everybody. Welcome to the YouTube class, and this is one of the very difficult class. Difficult class from the point of view that the answers are one word. So you have to see on the notebook and listen to me and match your mind also. I am talking about the same thing only. So I hope it is not a great task for you. It is difficult but not impossible task for you. So please listen to me and try to do. And no doubt, naturally, such chapter is the chapter which is the very easy. And I will take it once the school will open immediately at the first priority. Understand? Because when whatever is easy, it is very difficult to see. याद रखना. Normally मैं आपसे पूछूं, there is a one easy item and one difficult item. One is a difficult statement, one is very easy statement. One is very easy thing, one is very difficult thing. Which you feel difficult to speak, तो आप कहेंगे sir difficult one. Sorry, easiest one is the most difficult one. If you are not happy with any student or friend, so it is a difficult situation. But it is very easy to say why you are not convenient with him. But when you are friendly with anyone, you like him, so in that case it is very difficult to convince anyone why you like him. Understand or not? It is easy to explain any sweet, barfi, rasgulla, gulab jamun taste. But it is very difficult to express the taste of the sugar. So similarly here also, I will go in the detail, it will take too much time. So let us start. Question number 1. State whether the given set is infinite or finite. Now when you see the question number 1, there is first part, 3, 5, 7, dash, 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 dash. It means this series will never end. So naturally it is infinite. Second part, 1, 2, 3, 4. So it means there is no any scope of going further. Only 4 elements, so it is a finite set. Next, I am reversing the reverse order because dash dash is on the left side. 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, dash 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 dash. So it means infinite because it will never end at the lower end. Next is 20, 30, 40, 50, dash 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 200. It will take time, but you can count up to 200. So it is a finite set. Understand better? First one is infinite because 3, 5, 7 के बाद क्या आएगा you don't know. How many terms will come? Second is finite because only 4 terms are there. Fifth is again infinite because at the beginning we don't know from where we start. And the last part is finite because 20, 30, 40 से लेकर 200 तक. Maybe it take time, but you can write and you can count. Now next, which of the following set is empty set? Empty set means there is no any element. So question number second, first part. Set of counting number between 5 and 6. याद रखना, I am doing 10D. I am going in the reverse order. In this chapter, I told you that this is a totally special chapter. So I am going in the reverse order so that the things will become so easy that the first chapter you will be able to not only to understand but you can do yourself. याद रखना, I am doing in the reverse order. Okay, check. Exercise 10D, question number 2. Set of counting number between 5 and 6. So between 5 and 6, no any counting is there. So naturally it is an empty set. Set of odd number between 7 and 19. तो सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 7 एंड 19 क्या होगा? 9, 11, 13, 15, 17. तो देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो यानी कि इट इज नॉट एम्प्टी, तो इट इज नॉन एम्प्टी. इसको आप क्या लिखेंगे? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट. प्लीज पहले वाले का आप लिखेंगे एम्प्टी सेट और इसका लिखेंगे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ 5 एलिमेंट्स. नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 7 and 9. So between 7 and 9 there is only 8 and 8 is an even number. And you want odd number, so there is no any option. So you will say empty set. Next, set of the even number that are not divisible by 2. Set of the even number
that are not divisible by 2. It is not possible, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? The numbers divisible by 2. Numbers divisible by 2. और मैं कह रहा हूं not divisible by 2, तो नेचुरली ऐसा इवन नंबर नहीं हो सकता, तो दिस इज आल्सो एन एम्प्टी सेट. लास्ट, a set contains 0 while there is 0 but it is one element. While that is 0, it is one element, one digit या one number, तो you can't consider it as an empty set. I understand बेटा? फिर सुन लीजिए. फर्स्ट पार्ट इज एम्प्टी सेट बिकॉज 5 और 6 के बीच में कोई काउंटिंग नहीं. सेकेंड पार्ट इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारे पास 9, 11, 13, 15, 17 5 नंबर. नेक्स्ट पार्ट इज ऑड नंबर बिटवीन 7, 9 नहीं होते, तो इट इज अगेन एम्प्टी. नेक्स्ट इज द इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो दैट इज आल्सो एन एम्प्टी सेट. और लास्ट पार्ट कंटेन 0. 0 इज वन एलिमेंट, one digit या one number, so naturally this set is not an empty set. I hope you understand. Now please come to the question number 3. Question number 3 is equal set and equivalent set. तो naturally first is, याद रखना, if there are equivalent set then we can think about equal, क्योंकि equivalent क्या होता है? जिनकी काउंटिंग सेम होगी, तो फिर हम देखेंगे भाई एक जैसे नंबर है कि अलग अलग है. जब काउंटिंग ही अलग है तो फिर तो सेम होने का सवाल ही नहीं उठता. तो इसलिए याद रखना, पहले हम इक्विवेलेंट देखते हैं. अगर इक्विवेलेंट होता है देन वी गो टू द इक्वल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. So my dear student, question number 3, they had given the two set, they are asking they are equal or equivalent, and by chance they are not asking the different terms. Okay, so but there are two things are there: number of item and the items. If only number of items are same, then it is equivalent. If items are also same, then they are equal. Now you will say कि सर items are same, numbers are not same. ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता. आप कोशिश करके देखिए, आप सेम आइटम लेंगे तो काउंटिंग सेम होगी ही होगी. याद रखिएगा प्लीज. तो याद रखना, if number of items are same, equivalent. If items are also same, equal. So there are 3 cases: neither item, items are not, number of counting is not same. Next, counting is same, and then number of elements are also same. 3 counting या number of elements are not same, number of elements are same, and elements are also same. चलिए इस पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 92. 3, 5, 7, 5, 3, 7. देखिए 1, 2, 3 3 एलिमेंट, 1, 2, 3 3 एलिमेंट. 5 is there, 5 is there, 3 is there, 3 is there, 7 is there, 7 is there. तो you can say equal set. क्यों? As not only number of elements are also same. अब आते हैं यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो काउंटिंग आर सेम, तो लेट मी चेक एलिमेंट आर सेम और नॉट. 8 इज देयर, नॉट देयर, तो इसका मतलब एलिमेंट्स आर डिफरेंट. तो यू विल से इक्विवेलेंट सेट एज ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. और आप कहें तो लिखें एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम. ठीक, आपकी वर्डिंग ये भी हो सकती है. नाउ थर्ड पार्ट, दे आर सेइंग 7, 7, 2, 1, 2 एंड 1, 2, 7. तो पहले मैंने कहा 7, 7, 1, 2, 1, 2 is not a set, मतलब actual form. Let me write 7 one time, repetition is not allowed. 2 one time, repetition is not allowed. 1 is already one time, and nothing else is left. Here is 1, 2, 7. Now 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 elements are there, and by chance 7 is here also 2 is here also 1 is here also. So these are equal set, and not only number of elements are same, elements are also same. Now fourth part, 2, 4, 6, 8, 10, 5 elements, A, B, D, E, M, 5. But these are counting, these are alphabet, so naturally totally different. So what you will say, equivalent set as the number of elements are same. और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिखें as not only number of items are same
but elements are not same. Okay, चलिए now let us take question number 4. Now my dear student, question number 4, page number 92. They are asking it is a finite or infinite. So we have to think deeply, and several times our answers will be different also, depending on the situation. But we will take an overall concept. Okay, and whatever the answer we are saying, we have some logic to make it clear about our answer. Little bit logic. Maybe I am convinced with you or you are convinced with me, but at least we are able to discuss about our possibilities. Okay, in several क्वेश्चन such situation का मोस्टली ऐसा नहीं होगा, बट है. चलिए, सबसे पहला सेट ऑफ इंटीजर्स. तो naturally you know that set of integers is infinite, because from infinity it come and go up to infinity. So it is infinite. फिर मल्टीपल्स ऑफ 5. तो let's say 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, you will go carry on. So it will be also infinite set. Now fractions between 1 and 2. याद रखना, फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर. And there are infinitely many rational and many irrational number between the two number. अगर मैं 0.0000001 और 0.000000001 के बीच में भी अगर मैं नंबर ढूंढूंगा तो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स. प्लीज क्लास के अंदर लाइव में बैठेंगे, आप नंबर बोलिएगा, मैं आपको बनाऊंगा उसमें से नंबर. ओके, पर फिलहाल आप याद रखिएगा, बिटवीन द टू नंबर्स इन केस ऑफ द फ्रैक्शन या रैशनल एंड इरेशनल आल्सो, अभी आपने पढ़ा नहीं इरेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स. ओके, so you have to take care of it. So I am writing here directly infinite set. I am sorry, now I am not able to take an example, but in the class you can ask me, you can make a star on this question and I will try to convince you. Now please, number of papers in India. अब इस पे आपने आपसे कहा था कई बार आप और हम कन्विंस हो गए, कई बार नहीं. अब नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया वैसे तो इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको पता है जब हम काउंट करते हैं बहुत से लोग छूट जाते हैं. हम लोग आधार कार्ड भी बना लेते हैं, फिर भी लोग छूट जाते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जब हम काउंटिंग करें आधार कार्ड बना रहे हैं, इंडिया से बाहर गए हुए हैं. सिमिलरली कुछ लोग बाहर के हैं, वो इंडिया में आ रखे हैं. अंडरस्टैंड और नॉट? तो देयर आर ऑलमोस्ट डिफिकल्टीज टू काउंट देम. तो इट इज इनफाइनाइट. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट अपने करने पे आ जाए, जैसे नोटबंदी है या लॉकडाउन है, तो इट इज फाइनाइट आल्सो. तो ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे लेते हैं. प्लीज, नंबर ऑफ पीपल्स इन इंडिया कैन बी ए फाइनाइट सेट और कैन बी एन इनफाइनाइट सेट आल्सो. जब मैं आपकी उम्र में था तब हम लोग इनफाइनाइटली पढ़ते थे, क्योंकि उस वक्त जो सिस्टम थे उसके हिसाब से तय करना मुश्किल था कि इंडिया में कितने लोग हैं. काउंट करने का बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था, मैनुअली काउंट करने पड़ते थे और लगता था कि इम्पॉसिबल है. जब तक काउंट करेंगे तब तक जिनको हमने काउंट किया हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, वो हो सकता है कि घर में कोई न्यू अराइवल हो जाए. बट अब साइंस टेक्नोलॉजी अगर चाहे और गवर्नमेंट करने पे आ जाए तो हो भी सकता है. डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. तो इसलिए मैं ये आंसर आपको छोड़. सेट ऑफ ट्रीज इन वर्ल्ड, तो इट इज एन इनफाइनाइट. रीजन इज दैट टिल टुडे वी आर नॉट श्योर अबाउट ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ each and everything. Maybe it is bacteria, maybe it is virus, maybe it is the aquatic animal, maybe it is the tree, bushes, whatever it is. Still today science is not sure that these are the only one, other than this is not available in this world. Okay, so it is also an infinite set. याद रखना,
कागजों में हो सकता है फाइनाइट होल देखने को लगे, पर साइंस से कहते हैं कि अभी भी हमने सारे प्लांट्स को, सारे टाइप्स को स्टडी नहीं किया है और अभी पता नहीं कितने साल लगते हैं। ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर कमिंग टू नो अबाउट मोर एंड मोर थिंग विच वी डोंट अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब इसमें भी आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। नाउ सेट ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप बात आम की कर रहे हैं या बरगद की कर रहे हैं, पीपल की कर रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंट द लीव्स। लेकिन बहुत से आपने ट्रीज ऐसे देखोगे जिनमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्री लीव्स होती हैं, आप इजीली काउंट कर लेते हैं। अगर आप गांव या किसी और जगह पे जाएंगे तो आप देखेंगे ड्यूरिंग द विंटर बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनके ऊपर मुश्किल से 5-6 पत्ते ही रह जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये मैं आप पर छोड़ता, मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं आपको कन्विंस नहीं करना चाहता, और अगर मैं कन्विंस कर भी दूंगा, जब आप किसी से बहस करेंगे वहां पे आपको पता चलेगा यू आर रॉन्ग। तो आई एम लीविंग ऑन यू, यू हैव टू डिसाइड इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फ्रॉम माय साइड बोथ आर एक्सेप्टेबल। Now next, set of children in schools of death। ये भी वही वाली बात है कि फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। फाइनाइट इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स रजिस्टर्ड होंगे, उनमें नंबर ऑफ बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, तो वी विल कम टू द दैट। और इनफाइनाइट इसलिए है बिकॉज इन ईच एंड एवरी सिटी देयर आर सो मेनी स्कूल्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड। So naturally you will not come to know that कि how many students were there। तो मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन गलत है, मैं ये कह रहा हूं इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, जैसा आपका दिमाग कहता है आप यूज कर लीजिए। पर याद रखना, दिमाग कहता है, जो आपका दिल कहता है कि यस इट इज राइट, यार ये हो सकता है, ये बात ठीक लग रही है, मेरा दिल कहता है हाँ ऐसे होता नहीं, मैं काउंट कर लूंगा यार, गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है यार, चलो मेरे अकेले से को मैं 10 लोग और बुला लूंगा, काउंट कर दूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसे आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बोलूं कि भाई नंबर ऑफ हेयर्स इन माय ब्रेड, तो आपको बड़ी मुश्किल है काउंट करना। लेकिन आप मुझसे कहीं पे फादर क्लीन शेव होंगे, मैं बोलूं नंबर ऑफ हेयर्स इन द ब्रेड, तो आप कहेंगे 0 कर लिए काउंट 1 मिनट। समझ आए कि नहीं? मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। एक चीज हमेशा याद रखना, साइंस और मैथ में जिद नहीं चाहिए। अगर आप जिद ले लेंगे कि मैं ही ठीक हूं, तो समझ लीजिए कि मैथ और साइंस आपके इज नॉट अ कप ऑफ टी। वी हैव टू लीव इट ऑन अदर्स। चलिए, मैं इसके 2 पार्ट और हैं, लिखने का स्पेस नहीं है और मैं खत्म करना चाहता हूं इसको, तो इसमें मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नाउ 8th पार्ट, डैश 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 -4 -2 0 2 4 6 8। तो नेचुरल इट इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी डोंट नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट। Next is -12 -9 -6 -0 3 6 dash dash dash, it is also infinite set because we don't know where it will end। फिर number of points on the line is 4 centimeter long। याद रखना 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर इनफाइनाइट। प्लीज इसमें कोई बहस नहीं होगी, ये एकदम क्लियर चीज है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट whatever is its length will be always infinite। इन्होंने 4 सेंटीमीटर का हुआ है, मान लो मैं आपको बोलता हूं 0.01 सेंटीमीटर, तो देन आल्सो देयर विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो यू अंडरस्टैंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आई होप। तो बेटा मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि हमारे बहुत सारे आंसर्स होते हैं विच डिपेंड ऑन अवर एक्सपीरियंस एंड द सिचुएशन, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट देम विद द ओपन माइंड। डोंट बी रिजिड कि यही आंसर होगा, बट वट एवर इज गेटिंग करनी, बट वट एवर द रीजन इज देयर ड्यू टू दैट यू आर गिविंग द आंसर, दैट शुड बी क्लियर टू यू एंड यू हैव द कैपेबिलिटी टू explain to somebody else।
भाई मैंने बोल दिया फाइनाइट है, अगला बोले कि जी ये फाइनाइट नहीं है, तो मैं उसको कन्विंस ना कर पाऊँ, या मैं उसको ना बता पाऊँ कि मैंने ऐसा क्यों जवाब दिया। अंडरस्टैंड? ये नहीं कि आप टाइप कॉइन देके बैठ जाए, हेड आया तो फाइनाइट, टेल आया तो इनफाइनाइट, हेड आया तो फाइनाइट, टेल आया तो इनफाइनाइट, नॉट एट ऑल। Understand? So my dear student, thank you very much. I am leaving the class here, and I hope you will note down up to question number 4 on the notebook, and I will give the name. That student will send the picture of his or her photo notebook, and for the group icon also. And one more thing, जब आप ग्रुप आइकन के लिए आपको फोटो भेजते हैं तो आप पहले आप एक काम कीजिएगा, अपने घर पे उसको ग्रुप आइकन में लगा के देखिए उस फोटो को, कि अगर मैं उस फोटो को ग्रुप आइकन में लगाता हूं तो क्या वो फोटो क्लियर होगी, क्या दूर से देखने पे आदमी को उसका चेहरा दिखाई दे जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग लॉन्ग शॉट भेज देते हैं, तो जब वो ग्रुप आइकन में इतना सा हो जाता है, वो लॉन्ग शॉट में बच्चे की शक्ल ही गायब हो जाती है। ठीक, तो आपने क्या करना है, जब ग्रुप आइकन के लिए जब फोटो भेजनी है तो पहले आप क्या कीजिए, अपने घर के व्हाट्सएप के ऊपर उस फोटो को एज लार्ज एज पॉसिबल करके, ताकि आपका शक्ल सबको दिखाई दे, ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये मत सोचिएगा कि वही परफॉर्म कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, बाकी भी कर रहे हैं। इट इज ओनली बाई चांस, वन बाई वन आई एम कॉलिंग यू एंड मेरा नंबर आएगा। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।